بگڑتی معاشی صورتحال، ٹیکسٹائل ملوں کا برا حال، مزید 8 ملیں بند ہو گئیں۔ ہزاروں مزدور بے روزگار، قرض کی شرح بڑھنا، ایل سیز کا بند ہونا اور انرجی کرائسس، ملز بند ہونے کی بڑی وجوہات، تاجر پھٹ پڑے۔ معاشی بحران میں اضافہ، فیصل آباد میں 8 ماہ کے دوران 8 ٹیکسٹائل ملز بند ہو گئی، جس سے ہزاروں مزدور بے روزگار ہو گئے۔ ڈسٹرکٹ آفیسر انڈسٹریز میاں عرفان کے مطابق قرضے کی شرح میں اضافہ، ایل سیز کا بند ہونا، انرجی کرائسس، ملز بند ہونے کی وجوہات ہیں۔ گورنمنٹ کے انٹرسٹ ریٹ ہیں فائبر وغیرہ وہ بہت بڑھ گئے ہیں، اس وجہ سے جو کیونکہ انڈسٹریز مین جو ہوتا ہے وہ لون پہ چل رہی ہوتی ہے، فائبر بڑھ گیا ہے، اس وجہ سے بھی ہے۔ پھر انڈسٹریلسٹ جو بات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں جو بجلی کے ریٹس ہیں اس کا بھی ایشو بہت زیادہ آیا ہے، اور جو ایل سیز کا ہے، اس ایل سیز نہ کھلنے کی وجہ سے کیونکہ جو باہر کا کسٹمر ہوتا ہے اس کو وہ ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ ان کو مال پہنچ سکے گا کہ نہیں پہنچ سکے۔ ڈی او انڈسٹریز کہتے ہیں کاروبار میں بہتری کے لیے بجٹ میں بزنس کمیونٹی کا خیال رکھا گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ آہستہ آہستہ حالات بہتری کی طرف جائیں گے، انڈسٹری کی ترقی سے ہی ملک کی ترقی جڑی ہوئی ہے۔ ابھی گورنمنٹ نے ایل سیز تو کھول دی ہیں، اس کے اوپر کام ہو رہا ہے، باقی یہ جو بجٹ آیا ہے امید ہے اس میں کافی وہ ریلیف دے رہے ہیں انڈسٹریلسٹ کو۔ یہ جو چیمبر والوں کو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ نے یہ جو بجٹ ہے یہ تقریباً ٹھیک کیا ہے، اور اس کے لیے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس میں اور بہتری کی جائے۔ معاشی ماہرین کے مطابق معیشت کی بگڑتی صورتحال کے پیش نظر حکومت کو انڈسٹری کے لیے دیر پا اور مؤثر اقدامات کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ کیمرامین ملک عرفان کے ساتھ محمد علی ناروز، سٹی 41، فیصل آباد۔ صدر فیصل آباد چیمبر ڈاکٹر خرم طارق کی وزیر خزانہ اسحاق ڈار سے ملاقات، بجٹ کے حوالے سے تجاویز اور تبدیلیوں پر گفتگو کی گئی۔ صدر چیمبر ڈاکٹر خرم طارق کا کہنا تھا کہ انڈسٹری کے لیے بجلی گیس کی سبسڈی 5 سال تک بڑھائی جائے۔ انہوں نے کہا تاخیر کا شکار ڈی ایل ٹی ایل ریفنڈز اور سیلز ٹیکس ریفنڈز کی فوری بحالی کو یقینی بنایا جائے۔ ڈاکٹر خرم طارق نے مزید کہا را میٹیریل کی دستیابی اور امپورٹ کو بحال کیا جائے تاکہ ایکسپورٹ بہتر ہو۔ وزیر خزانہ نے انڈسٹری کی ترقی کے لیے مثبت اقدام اٹھانے کی یقین دہانی کروائی اور ڈاکٹر خرم طارق کو بتایا انڈسٹری کی بحالی اور معیشت کی مضبوطی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ فلور ملز ایسوسی ایشن اور محکمہ خوراک میں اختلافات، معاملات خراب، بگڑ گئی بات۔ آٹے کی چیکنگ اور گندم کی بولی لگانے کے عمل پر فلور ملز مالکان سیکرٹری خوراک کے خلاف پھٹ پڑے۔ کہتے ہیں اس اقدام سے 2 روز میں 20 روپے کلو آٹا مہنگا ہو گیا ہے۔ سیکرٹری اس طرح کے کاموں سے حکومت کو ناکام کرنا چاہتے ہیں۔ فلور ملز مالکان محکمہ خوراک کی شرائط پر آگ بگولا، آٹا کوالٹی کی چیکنگ پنجاب فوڈ اتھارٹی کے سپرد کرنے پر اور گندم کی بولی لگانے کے عمل کو مسترد کر دیا۔ فلور ملز مالکان کہتے ہیں بے جا چھاپوں اور اس طرح کے اقدامات سے بحران پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، بولی سے آٹا اور گندم مزید مہنگی ہو جائے گی۔ چیئرمین فلور ملز ایسوسی ایشن چودھری شفیق کے مطابق ایک آرڈر کے بعد آٹا 20 روپے کلو مہنگا ہو گیا ہے۔ اگر یہ صورتحال رہی تو آٹا مہنگا ہونے کے ساتھ مارکیٹ سے غائب بھی ہو جائے گا۔ 3900 والی گندم 4700 میں نیلام کریں گے یا 5 میں کریں گے تو عام آدمی کو آٹا کس ریٹ میں ملے گا؟ جب گندم کا ریٹ 160-70 روپے کلو ہوگا تو آٹا 200 روپے کے جی پہ جائے گا۔ آج ایک ہفتہ پہلے 110 روپے میں مل رہا تھا، اس نے تھوڑی سی سختی کروائی، وہ آٹا 130 پہ چلا گیا کیونکہ گندم 4000 سے 4600 پہ چلی گئی۔ فلور ملز انتظامیہ کہتی ہے بولی کے بعد 3800 والی گندم 4500 روپے سے زائد کی ہو جائے گی۔ کیمرامین حسن چوہان کے ساتھ محمد بلال ڈوگر، فیصل آباد۔ فیصل آباد میں شدید گرمی کی لہر، ہیٹ ویو کے دوران شہری ہیٹ سٹروک کا شکار ہونے لگے۔ ضلع بھر میں کہیں بھی ہیٹ سٹروک کا کاؤنٹر قائم نہ کیا جا سکے۔ شہر کے سرکاری ہاسپٹلز میں گیسٹرو اور ہیٹ سٹروک کے سینکڑوں مریض رپورٹ ہونے لگے۔ فیصل آباد میں شدید گرمی کی لہر، شہری ہیٹ سٹروک کا شکار ہونے لگے۔ سرکاری اسپتال اور پبلک مقامات پر ہیٹ سٹروک کاؤنٹر قائم نہ ہونے سے شہریوں کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا۔ اسپتالوں میں گیسٹرو اور ہیٹ سٹروک کے سینکڑوں مریض رپورٹ۔ فیصل آباد سول اسپتال میں اب تک 20 سے زائد مریض رپورٹ ہوئے۔ طبی ماہرین نے دل، شوگر، بلڈ پریشر اور گلٹ کی مرض میں مبتلا مریضوں کو خبردار کر دیا، احتیاط برتنے کی ہدایت کر دی۔ باڈی کا ٹیمپریچر بڑھ جانا اور اس کے علاوہ پانی کی شدید زیادہ کمی ہو جانا اور اس کے اوپر پھر جسم کے ساتھ کی شکل میں سامنے آتا ہے۔ اب یہ وہ چیز ہے جسے آسانی سے بچا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے بچنے کے لیے ہوتا ہے کہ آپ پراپرلی اپنے آپ کو ہائیڈریٹ کریں، پانی کا استعمال جو ہے وہ زیادہ کریں۔ دوسرا یہ ہے کہ گرمی سے بچاؤ کے لیے جو احتیاطی تدابیر ہیں، جیسے چھاؤں میں رہنا، دھوپ میں کم نکلنا، اگر دھوپ میں نکلنا ہے تو اس کے ساتھ پانی کا استعمال زیادہ کرنا۔ ریلوے اسٹیشن، لاری اڈا اور دیگر عوامی مقامات پر سہولیات کا فقدان، شہریوں کے ہیٹ ویو سے متاثر ہونے کے خطرات بڑھ گئے۔ لاری اڈا میں پینے کے ٹھنڈے پانی کی شدید قلت، مسافروں نے ضلعی انتظامیہ کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ کوئی میڈیکل نہیں لگیا ہویا اور لگنا چاہیے، پانی گرمی بہت آ، مہربانی کرن کیمپ جہاں نا پانی دا لگنا چاہیے۔
पानी ठंडा नहीं है, कोई इधर कोई इंतज़ाम नहीं है, इतनी गर्मी है, इधर हम बैठे हुए हैं, लाहौर से हम आए हैं, तो कोई पानी का इतना इंतज़ाम, ठंडा पानी का इंतज़ाम नहीं है। हीट स्ट्रोक की सूरत में तिब्बी इमदाद की ताखीर जानलेवा हो सकती है। हीट स्ट्रोक काउंटर कायम ना होना ज़िला इंतजामिया की नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। कैमरामैन मोहम्मद मुअज्जम के साथ इमरान असलम, सिटी 41, फैसलाबाद। फैसलाबाद डिवीजन में गर्मी की शिद्दत में इजाफा से हीट स्ट्रोक के हमलों का खदशा, तबी माहिरीन ने शहरियों को खबरदार कर दिया। कहते हैं हीट स्ट्रोक से बेचैनी, घबराहट, खरूदगी और बेहोशी हो सकती है। फैसलाबाद गर्मी की शिद्दत में इजाफे से हीट स्ट्रोक के हमलों का खदशा, तबी माहिरीन ने शहरियों को खबरदार कर दिया। कहते हैं हीट स्ट्रोक से बेचैनी, घबराहट, खनूदगी और बेहोशी हो सकती है। एहतियाती तदाबीर ना की जाए तो हीट स्ट्रोक मोहलिक साबित हो सकती है। टोबा टेक्सिंग में भी सूरज का पारा हाई हो गया, दर्जा हरारत 44 सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा है। MS डिस्ट्रिक्ट अस्पताल टोबा डॉक्टर काशिफ बाजवा कहते हैं हीट वेव से मुतासर होने का खतरा बच्चों और उधेड़ उम्र के लोगों में ज्यादा होता है। हीट वेव से बचने के लिए निमकोल वाला पानी ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। दोपहर के वक़्त में ज़रा कम से कम निकलें बाहर और अपने पानी पीने की रूटीन को ज़्यादा मज़ीद बेहतर बनाएं। अपने सर को ढांप कर रखें और अपने जो अच्छी डाइटरी हैबिट्स हैं उनको अडॉप्ट करें। इसमें से जैसे मशरूबात हैं उनका मतलब इस्तेमाल, जैसे जो कि कार्बोनेटेड सोडा, कोई बोतल वगैरह, इनकी ज़रूरियात ज़्यादा इस्तेमाल ना हो। जंग में भी गर्मी के वार जारी, दर्जा हरारत लगभग 43 डिग्री रहा। शदीद गर्मी में बिजली की लोड शेडिंग ने शहरियों का जीना दोभर कर दिया। मौसमियात के मुताबिक आइंदा 3 रोज में दर्जा हरारत में मजीद इजाफा मुतवक्के है। चिन्योट में सूरज का पारा 45 डिग्री तक पहुंच गया है। निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी का अहसन इक़दाम। महकमा सेहत पंजाब को शदीद गर्मी के पेश नजर हीट स्ट्रोक के लिए फौरी इक़दाम करने की हिदायत कर दी है। CEO हेल्थ डॉक्टर सुहेल तारिक ने MS डिस्ट्रिक्ट अस्पताल चिन्योट डॉक्टर अहमद खान और डिप्टी DHO डॉक्टर नायमा के हमरा हीट स्ट्रोक से बचाव के लिए इंतजाम का जायजा लिया। उनका कहना था कि THQs, BHQs और RHC समेत लारी अड्डों और मुख्तलिफ जगहों पर हीट स्ट्रोक रिलीफ कैंप लगा दिए गए हैं। बिला वजह घर से बाहर ना निकलें, सर और बॉडी का एक्सपोज पार्ट डाम के बाहर निकले। नंबर 2, इन दिनों में हम शिकंजबीन और नमकियात का इस्तेमाल ज़्यादा कर लें। बाकी जहाँ तक रहा कि महकमा हेल्थ तो हर तरह के हालात में, जैसे आपने देखा कोरोना में भी हमारा रिस्पांस बेहतरीन था। हम तो आदी हो गए और इंशाल्लाह DHA वेल ट्रेंड है इस तरह की चीज़ों को देखने के लिए। तिब्बी माहिरीन ने हीट स्ट्रोक से बचने के लिए शहरियों को पानी के ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल, घर से गैर जरूरी तौर पर ना निकलने, नरम और हल्के कपड़े पहनने की हिदायत जारी की है। फैसलाबाद में जाली सेल्स टैक्स इनवॉइसेस का एक और केस सामने आ गया। पीर महल में वाक़या मान पेट्रोलियम एंड ल्यूब्रिकेंट्स ने जाली सेल्स टैक्स इनवॉइसेस के जरिए 20 करोड़ 93 लाख रुपए टैक्स चोरी की। FBI हुकाम के मुताबिक मान पेट्रोलियम ने 2020 में पेट्रोलियम के कारोबार के लिए कंपनी रजिस्टर्ड करवाई। मान पेट्रोलियम ने जाली रिकॉर्ड तैयार करके 1 अरब 23 करोड़ रुपए की खरीदारी जाहिर की। खरीदारी की आड़ में सेल्स टैक्स इनवॉइसेस के जरिए 20 करोड़ 93 लाख रुपए की गैर कानूनी एडजस्टमेंट की गई। टैक्स चोरी माली साल 2021 में की गई। हुकाम के मुताबिक मुतालिका कंपनी को नोटिस जारी किए गए मगर ताहाल कोई जवाब नहीं मिला। फैसलाबाद में जाली सेल्स टैक्स इनवॉइसेस का एक और केस सामने आ गया। पीर महल में वाक़या मान पेट्रोलियम एंड लुब्रिकेंट्स ने जाली सेल्स टैक्स इनवॉइसेस के जरिए 20 करोड़ 93 लाख रुपए टैक्स चोरी की। FBI हुकाम के मुताबिक मान पेट्रोलियम ने 2020 में पेट्रोलियम के कारोबार के लिए कंपनी रजिस्टर्ड करवाई। मान पेट्रोलियम ने जाली रिकॉर्ड तैयार करके 1 अरब 23 करोड़ रुपए की खरीदारी जाहिर की। खरीदारी की आड़ में सेल्स टैक्स इनवॉइसेस के जरिए 20 करोड़ 93 लाख रुपए की गैर कानूनी एडजस्टमेंट की गई। टैक्स चोरी माली साल 2021 में की गई। हुकाम के मुताबिक मुतल्लिका कंपनी को नोटिस जारी किए गए मगर ताहाल कोई जवाब नहीं मिला। उधर फैसलाबाद में बेनामी जायदादों के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए ऐलान करदा एडिशनल एंटी बेनामी जोन के मंसूबे पर कोई पेशरफ्त न हो सकी। हुकूमत की जानिब से अभी तक कोई फंड्स फराहम न किए गए। FBR ने भी एंटी बेनामी जोन को फाल करने के लिए कोई इकदाम न किए। एडिशनल एंटी बेनामी जोन के कयाम की मंजूरी 1.5 साल कबल दी गई थी। रवां माली साल का इख्तिताम पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की नादहिंदगान हाउसिंग सोसाइटीज के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। 5 करोड़ 20 लाख रुपए अदायगी न करने पर गालिब सिटी का दफ्तर सील कर दिया गया। PRA हुकाम के मुताबिक गालिब सिटी के जिम्मे 2016 के वाजिबात वाजिबुल अदा थे। नोटिस की अदम तामील पर कानूनी मालिकान के बैंक अकाउंट सीज किए गए। पूरी रिकवरी न होने पर कानूनी सील कर दी गई। फेस्को में भर्तियों के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए अच्छी खबर। 600 गार्ड्स की भर्तियों के लिए 27 जून को फेस्को हेडक्वार्टर्स में टेंडर ओपन होगा। टेंडर में निजी कंपनियां शिरकत करेंगी। अगस्त के पहले हफ्ते में भर्तियों का अमल शुरू होगा। निजी फॉर्म का इंतखाब फेस्को कमेटी करेगी। इस हवाले से फेस्को हुकाम का कहना है भर्तियों में शफाफियत के अमल को यकीनी बनाया जाएगा।
फैसल आबाद में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की इमदादी रकम का हसूल वबाल जान बन गया। गर्मी ने खवातीन को बच्चों समेत निढाल कर दिया। माजूर खातून कहती हैं सुबह से लाइनों में है, कोई नहीं सुन रहा। ठंडा पानी है ना सायादार जगह, खवातीन की दुहाई, इंतजामिया खामोश तमाशाई बन गई। फैसलाबाद में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की इमदादी रकम लेना नामुमकिन हो गया। शदीद गर्मी में समनाबाद सेंटर में खवातीन नन्हे बच्चों समेत लंबी लंबी कतारें, बुजुर्ग खवातीन भी सुबह से शाम तक इंतजार करने पर मजबूर हो गयी। 8 बजे आई हैं। अंदर क्यों नहीं जान दे रहे? अंदर हम जान दें तो फिर ये धक्के मेरे माथा बची अगे भी नहीं अपने साथ लाई थी, वो भी खत्म हो गया। खड़े भी नहीं हो सकते, आगे जाने का रास्ता भी नहीं, पता भी नहीं है कि कब आगे जाएंगे, कोई टाइम ही नहीं है, देखे जगह भी नहीं है। सेंटर्स में सहूलियात के फुकदान का शिकवा, माजूर खवातीन भी दर बदर होने लगी। कहती हैं सुबह से लाइनों में लग रही हैं, लेकिन किसी ने मेरी एक ना सुनी। आए है लाइन च लगे हैं तो नहीं खड़ा होया जाता मजदूर, हुण मैं बड़ी आक सक के जा रही हूँ। किसी ने सुनिया नहीं आके तानू के को पुछिया नहीं? भी नहीं है, देखा है अगले कहते पीछे हट जाओ, मेरे को खड़ा नहीं है जा। फरमैशी जड़े है उन्होंने बढ़ जाते हैं, जड़े उदा बैठे है वो खड़े है। फरमाइशियों को कैसे अंदर बुलाते हैं? और पुलिस लेके जाती है, पुलिस के जरिए। खवातीन कहती हैं गैस बिजली के बिल घरों में आ सकते हैं तो इमदादी रकम बाइज्जत तरीके से क्यों नहीं दी जा सकती। कैमरामैन अकील नकाश के साथ मरियम रजा, सिटी 41 फैसलाबाद। तांदियावाला में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का सिस्टम बैठ गया। लॉकडाउन होते ही अमला सेंटर से गायब। गोजरा में भी बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रिटेलर्स ने डिप्टी कमिश्नर के अहकामात हवा में उड़ा दिए। तांदियावाला में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का सिस्टम बैठ गया। लिंक डाउन होते ही अमला सेंटर से गायब। शदीद गर्मी में खवातीन बेयारो मददगार सेंटर में जलीलो खवार होने लगी। गवर्नमेंट कॉलेज बराए खवातीन में बने सेंटर से अमले के जाते ही पंखे बंद, कमरों को ताले लगा दिए गए। खवातीन का कहना है कि सुबह 5 बजे से बारी के इंतजार में सख्त गर्मी में खड़ी हैं। सिस्टम लिंक डाउन का बहाना लगाकर इंतजामिया चली गई है। घर बार छोड़कर भारी किराया भी भरकर आई है। हुकूमत खवातीन की बेबसी पर क्यों आंखें बंद करती है? परेशानी से बचाने के लिए हुकूमत बैंक अकाउंट में रकम क्यों नहीं देती? गोजरा में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रिटेलर्स ने डिप्टी कमिश्नर के अहकामात हवा में उड़ा दिए। ज़ैनब हॉल और हॉकी स्टेडियम में रिटेलर्स की मुबैना करप्शन का इंकशाफ हुआ है। खवातीन को डिप्टी कमिश्नर के अहकामात के बावजूद भी कंप्यूटराइज्ड रसीद नहीं दी जा रही। दूसरी जानिब बंद पंखे, पानी का ना होना, लंबी कतारें, गर्मी और हब्स में खवातीन रुल गई। इंतजामिया के सहूलियात की फराहमी के दावे धरे के धरे रह गए। सिफारिशी और रिश्वत देने वालों को फौरी रकम फराहम कर दी जाती है। खवातीन ने अमले पर इल्जाम लगा दिया। फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का अपने अखराजात पूरे करने के लिए इक़दामात का फैसला। FWMC अब कूड़ा उठाने की फीस वसूल करेगी। फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का अपने अखराजात पूरे करने के लिए इक़दामात का फैसला। FWMC अब कूड़ा उठाने की फीस वसूल करेगी। कारोबार करने वालों को फीस अदा करना होगी। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर FWMC अजीम शौकत का कहना था कि अब स्टोर और बैंकों से चार्जेस वसूल किए जाएंगे। उनका कहना था कि फीस लेने का मकसद अपना रेवेन्यू जनरेट करना है। इस सिलसिले में साल भर का हदफ 36 बिलियन रखा गया है। पहले मरहले में कारोबारी लोगों से फीस वसूल की जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता इसका दायरा कार वसी किया जाएगा। हमने शुरू किया है विद कॉर्पोरेट इंडस्ट्रीज, विद कॉर्पोरेट बैंक्स और जो हमारे बड़े स्टोर उनके साथ हमने शुरू कर दिए। अभी हमारा एक मादा हमने किया है जो सुपर स्टोर एसोसिएशन उनके साथ किया है। उनकी 37 ब्रांचेज हैं और हम 3000 पर मंथ हर ब्रांच से वसूल करेंगे। दूसरी जानिब म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन फैसलाबाद की नाअहली सहूलियात देने की कोशिश ताजरों के लिए नुकसान का बायस बनने लगी। ईद उल अजहा की आमद से कबल 8 बाजारों में टफ टाइल्स लगाने का प्रोजेक्ट शुरू कर दिया गया। खरीदो फरोख्त के दिनों में अखाड़ पछाड़ ने दुकानदारों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। ताजरों का कहना था कि तरक्याती कामों के लिए गलत वक्त का इंतखाब किया गया है। ये काम जुमे को होता तो किसी को मसला नहीं था क्योंकि तब 8 बाजार बंद होते हैं। अब 3 दिनों से काम बंद कर दिया गया है। इस वजह से रेत उधर ही पड़ी हुई है। ग्राहकों के लिए भी मुश्किलात हैं। ईद पर लोग खरीदारी के लिए निकलते हैं। सीजन का अरूज कॉर्पोरेशन की वजह से खराब हो रहा है। दिन से इधर ब्लॉकिंग है, ट्रैफिक की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, इश्यू है। कंस्ट्रक्शन की वजह से इन्होंने ऐसे छोड़ दिया। एक दिन इन्होंने किया काम, उसके 3 दिन ऐसे चल रहा है। इधर से हर बंदा गुजरता तंग हो रहा है, परेशान है। इधर से फिर वन वे वापस आते हैं उधर से आने वाला वन वे भी डिस्टर्ब होता है। ताजरों ने आला हुकाम से काम जल्द मुकम्मल करने के लिए इक़दाम करने का मुतालबा किया है। फैसलाबाद की मवेशी मंडी में शहरियों का रश, शहरियों का कीमतें ज्यादा होने का शिकवा। कहते हैं कुर्बानी अल्लाह की राह में की जाती है मगर बढ़ती महंगाई के बायस वो मजीद मुश्किलात में नजर आ रहे हैं।
फैसलाबाद की धनौला मवेशी मंडी जानवरों से खचाखच भर गई। शहरी बच्चों की जिद पर कुर्बानी के जानवर खरीदने मंडी पहुंच गए। जानवरों की कीमतें बुलंद होने की वजह से खरीदार सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए परेशान। व्यापारी और खरीदार के दरमियान भावता का सिलसिला जारी है। शहरियों का कहना है कि बढ़ती महंगाई ने कुर्बानी भी मुश्किल कर दी है। जो बकरा 60,000 का मिल रहा था अब वो 2 लाख तक का मिल रहा है। ये जानवर माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। पिछले साल हमें ये जानवर 65 से 70,000 में मिलता था। अब इनकी डिमांड 2 लाख रुपए कर रहे हैं। 30,000 रुपये महीने की सैलरी है, कारोबार नहीं है, बच्चे छोटे छोटे हैं। बंदा जानवर खरीदे या बच्चों का पेट पाले, बिजली के बिल दे या अपनी ज़रूरत की चीज़ें पूरी करे। बच्चे कहते हैं हमने जो बकरा पसंद किया है अब्बू से उसको लेने की जिद कर रहे हैं। हम वही बकरा लेंगे जो हमारी पसंद का होगा। शहरियों को ईद के आखिरी दिनों में जानवरों की कीमतें कम, जबकि व्यापारी जानवरों की फरोख्त में इजाफे के लिए पुरुमीद हैं। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ खिलदा लियाकत, सिटी 41 फैसलाबाद। आपको बताएं कि ईद कुर्बान की आमद मवेशी मंडियों की रौनकें उरूज पर पहुंच गईं। टोबा टेक की मवेशी मंडी में कालू और साका नामी बकरों की जोड़ी के चर्चे। ईद कुर्बान की आमद टोबा टेक की मवेशी मंडी में जानवरों की आमद का सिलसिला जारी। कालू और साका नामी बकरों की जोड़ी के मवेशी मंडी में चर्चे लोगों की तवज्जो का मरकज बन गए। मालिक कहता है बकरों की जोड़ी को 3 लाख रुपए में फरोख्त करूंगा। व्यापारी कहते हैं मवेशी मंडी में लोग बस जानवर देख कर बगैर खरीदे वापस चले जाते हैं। लोग सस्ते दामों अच्छा और वजनी जानवर खरीदना चाहते हैं जो कि मुमकिन नहीं। मंडी में जानवर का खर्चा रोज बरोज बढ़ रहा है। 1.5 लाख की है, 2 साल पाले हैं। 1.5 लाख कोई ज्यादा तो नहीं है और 60 किलो के है। जिंदा 110 किलो है, तोला कल कईयों ने ज़रा की तोल के ले गए, फिर भाग गए, वो नहीं लिया। ऐसे दिन में काम चलता है। मालिक का कहना था महंगाई के बायस खरीदार कम हैं। साका और कालू को इसी कीमत पर फरोख्त करने के लिए पुरुमीद हैं। कैमरामैन राशिद अनवर के हमरा अहमद नदीम, सिटी 41 टोबा टेक।